this meeting from my cell phone even, so that will help me. So good morning all of you, this is Vipul and we guys are discussing about our second unit, which is based on the probability distribution. In this unit we are supposed to deal with a kind of spatial probability distribution. Using that distribution we may go for hypothesis testing even, because when you are going to predict or when you are going to conclude some of the things from the entire population, and you need to deal with the samples, and to deal with the sample you need to have the knowledge regarding to the distributions, probability distribution. So as we all know that we are having two different types of random variables, that is discrete as well as continuous, और दोनों के लिए probability distribution कुछ अलग तरीके से हम define करते हैं. For the discrete random variable, the probability distributions which we are going to learn that are binomial as well as Poisson, and for the continuous random variable we'll be dealing with exponential distribution and normal distribution. Out of this four, two are most important. One of them is Poisson distribution and second is the normal distribution. One of that belongs to discrete random variable, another is related with the continuous random variable. Normal जो है वो continuous वाले part में आएगा, and that will be very very useful for you guys when you are going to deal with the big data. Okay, so we had already gone for some of the slides. You guys are good with this. Okay, roadmap हम discuss करते हैं, ये भी बात हो चुकी है. Yeah, we were on this particular slide at the end of the previous session. Now, what we are actually going to do, we are going to inference. We are going to make kind of inference. That means we are going for the prediction. We will be going for the prediction. Right now, we are not going for that. But in the future, when you are supposed to make a kind of inference for the entire population, then instead of dealing with the entire population, because it will be not convenient to deal with the entire population, you need to deal with the small sample, is it? So we will be picking a small sample from the entire population, and using that parameters of this sample, we will be giving a kind of inference, a kind of prediction for the entire population. Now, it is not convenient to deal with the entire population, as I say, is it? And अगर हम छोटे से सैंपल से काम चला रहे हैं तो ऐसा भी नहीं है कि हर बार वो जो प्रेडिक्शन हम दे रहे हैं, जो भी इन्फ्रेंस हम कर रहे हैं वो सही होगा, नहीं भी हो सकता. फॉर दैट काफी सारे पैरामीटर्स है जिसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा. जैसे कि जो भी आप सैंपल पिक कर रहे हो इट शुड बी प्रॉपर. तो सैम्पलिंग का भी कुछ ना कुछ इंट्रोडक्शन लेंगे हम इस सिलेबस में. कैसे करते हैं प्रॉपर सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल सैम्पलिंग, काफी सारी टेक्निक है सैम्पलिंग लेने के लिए भी. बट राइट नाउ वी आर डीलिंग विद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है and why we need that. As we had just discussed that you might be certain if you examine the whole population, अगर किसी भी एक पैरामीटर पे कुछ कमेंट करनी है या तो फिर कोई एक प्रिडिक्शन देना है, and we are dealing with the entire population, then surely our result, our prediction will be proper, will be perfect, will be certain. But ऐसा हो नहीं सकता. But oftentimes you only have a sample to work with. सिर्फ sample से ही काम चलाना पड़ता है. To draw the conclusion from sample data, you should compare value obtained from the sample with theoretical values obtained from the probability distribution. अब sample के साथ बात करने के लिए you need to deal with the theoretical distribution, theoretical probability distribution, और वो probability distribution जो है वो हमने इस unit में introduce किया हुआ है. So that is the main requirement, a kind of introduction why we guys are learning probability distribution in this particular 6th semester. आपके 6th semester में इसको क्यों घुसाया हुआ है? That is the answer. Okay? इसको yes. अब जब सैंपल के साथ बात कर रहे हैं, जब हम when we are dealing with a small sample, then there will be always a risk of drawing a false conclusion or making false prediction. गलत हो सकते हैं. अगर हमने हमारा सैंपल ही गलत चूज किया हुआ है तो उसके ऊपर से जो भी रिजल्ट्स हमको मिलेंगे, we cannot apply that result to the entire population. क्या बात कर रहा हूं? अगर आपके थोड़ा बाउंस जा रहा है तो मैं बताऊं. Suppose I'm
going to make a prediction for the average height of the all Marwari University students. मान लीजिए कि मैं मुझे एक छोटा सा टास्क असाइन किया हुआ है मैनेजमेंट ने कि सर आप बताओ मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में जितने भी बच्चे उसकी एवरेज हाइट क्या है. व्हाट इज एन एवरेज हाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉपुलेशन. अब इसको मैं पॉपुलेशन बोल रहा हूं. राइट नाउ माय पॉपुलेशन इज all the students of Marwari University, whether it belongs to engineering, whether it belongs to management, whether it belongs to diploma, कोई भी ब्रांच में, उन सभी को मैं अपनी पॉपुलेशन कंसीडर करूंगा. एंड आई एम सपोज टू गिव अ सिंगल फिगर दैट द एवरेज हाइट ऑफ मारवाड़ी स्टूडेंट इज 5.2, 5.10, 5.9 like that, is it? अब मैं करूंगा क्या? We are having 6,000 students on the campus. Am I supposed to measure each and every height of each and every? No, I will not do that. Surely I will not do that. Then what I will be doing? I will be picking randomly 50 to 100 students. मैं 50 या 100 बच्चे पिक करूंगा, रैंडमली पिक करूंगा. रैंडमली पिक करेंगे, उसको बोलते हैं हम रैंडम सैम्पलिंग. वो हम सीखेंगे, पर दैट इज अ डिफरेंट यूनिट. अभी हम नहीं उसकी बात कर रहे. सो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी पिकिंग अ सैंपल, स्मॉल सैंपल. अब अगर वो सैंपल मैं गलत ले रहा हूं, एक कोई ऐसा क्लास है, सपोज वी आर हैविंग एंटायर क्लास फ्रॉम द नेपाल, कोई एक इंटरनेशनल क्लास है जिसमें सारे बच्चे नेपाल से. And we guys are a little bit about that portion of that particular country. वहाँ के बच्चों की हाइट थोड़ी कम रहती है. They are not that much taller in comparison of us. And उसी को मैंने सैंपल लिया. मैंने 30 बच्चे लिए, सारे नेपाल के, from one of the specific location. We are not targeting any of the country, but कोई ऐसा एक सैंपल मैंने ले लिया जहाँ पे हर एक बच्चे की हाइट कम ही है, 5 feet around max. और फिर वहां से मैं एवरेज ले रहा हूं कि भाई इन सब की हाइट तो 4.9. एंड एम आई एबल टू, अगर इस सैंपल की मदद लेके, इफ आई एम प्रेडिक्टिंग, इफ आई एम गिविंग द कमेंट दैट मारवाड़ी यूनिवर्सिटी के सारे बच्चों की एवरेज हाइट इज 4.9, इट्स अ फोल. ये गलत है ना? सो दैट इज व्हाट आई एम डिस्कसिंग. कभी गलत हो सकता है. दैट इज अ रिस्क. दैट इज अ रिस्क व्हेन वी आर डीलिंग विद द सैंपल इंस्टेड ऑफ पॉपुलेशन. तो गलत हो सकते हैं, पर उसको भी सही करने की टेक्निक है हमारे पास ही है, स्टेट के पास भी है. कैसे? we need to be sufficient, we need to be sufficiently confident before making or taking any decision by setting and confidence interval. ये इसके लिए भी हमने एक बात की थी in the previous section. I was discussing I had provided one of the example जिसमें हमने पांडे जी को बालाजी कंपनी का ओनर बताया था और धामेचा को हमने बताया था एक गोल्ड, हाँ, तनिष्क या तो फिर कल्याण का ओनर बताया था. बोथ ऑफ देम वर प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट ऑफ 50 ग्राम. अब वहां पे कुछ गलत था. यहाँ पे अगर 10% भी गलती है तो इट्स फाइन. पांडे जी के जो कि वो वेफर्स बना रही है 50%, 10%, 5%, अगर ऊपर नीचे हो गया कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुझे. पर अगर धामेचा को वो 5% प्लस माइनस हो गया, अगर 1% भी, अगर 0.5% भी प्लस माइनस हो रहा है उसकी कंपनी में, तो हमने देखा था कि भाई ये तो रिस्की है. सो इसको ठीक करने के लिए भी एक टेक्निक है. दैट इज उसको हम बोलेंगे कि वी विल बी सेटिंग अ कॉन्फिडेंस इंटरवल, कि कितना एरर हम अलाउ कर सकते हैं. सो ये सारी बातें भी हो सकती है. We will be dealing with this particular 90% confidence interval, 95% confidence interval, 99% confidence interval. ये सारी बात आएगी पर किसी और यूनिट में आएगी. We'll deep dive in this topic in the last unit. कोई एक यूनिट है जिसमें हम वहां पे जाएंगे. But let's stick with the probability distribution. Now, when we are dealing with the probability distribution, we must be good with some of the measures of central tendency. When we must be good with the mean, we must be good with the standard deviation related to that particular data. Each probability distribution will have a formula, its own formula. Suppose we are dealing with first we are going to deal with the binomial distribution, and surely we will be having a specific formula, probability function for that particular distribution. The different shape, all the probability distribution will be of the different shape. Models उसका कुछ अलग होगा, classification कुछ अलग तरीके से कर पाएंगे. Is it? They are often classified into two categories, discrete as well as continuous. अब ये कहाँ से आया?
that is based on the random variables. कौन सा random variable है उसके लिए कौन सी probability distribution, अगर discrete है तो उसके लिए discrete probability distribution, अगर continuous है तो उसके लिए continuous probability distribution. So let's start with the discrete probability distribution और उसमें सबसे पहला होगा that is binomial. पर उस discrete में क्या करने वाले हैं चलिए वो देखते एक बार. Discrete probability distribution relates to discrete data. Discrete data क्या है पता है हमको, पता है हाँ या ना? When we are supposed to deal with the discrete random variable, discrete का मतलब क्या होता है? Yes, when we are dealing with the countable number of outcomes related to our experiment. Yes, so it deals with the discrete data. It often used to model uncertain events where the possible value of the variable are either attributes or countable. Too common. सबसे ज्यादा यूज हो रहे या तो फिर सबसे ज्यादा यूजफुल है डिस्क्रीट वाले पोर्शन में, तो वो दो डिस्ट्रीब्यूशन है, बायनोमियल एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. व्हेन वी विल बिगिन विद द बायनोमियल, और ये बायनोमियल आपने पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है 12th में. it was a part of your syllabus. I should off my webcam else ये आपका काफी डेटा कंज्यूम करेगा. सॉरी, आई फॉरगॉट दैट. तो चलिए चलते बायनोमियल के लिए. पर सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला डाउट शायद आपके दिमाग में हो कि सर कोई भी डेटा है, सपोज मेरे पास, इफ आई एम हैविंग डिस्क्रीट डेटा विथ मी, am I if I wish, then am I able to apply binomial, am I able to apply Poisson, am I able to apply uniform distribution, discrete distribution काफी सारे, discrete probability distribution काफी सारे, binomial, Poisson, uniform, geometric, मैं कोई भी अप्लाई कर सकता हूं? नहीं, ऐसा नहीं. We need to check our data set first कि क्या उसमें binomial distribution अप्लाई करने के लिए जो भी कंडीशंस है, जो भी एट्रीब्यूट्स है, वो सेटिस्फाई हो रहे हैं नहीं हो रहे. अब binomial कब अप्लाई हो सकता है? If your experiment is binomial experiment. Look, I'm using one other word to apply binomial distribution to any of the data. Your data must be, जो भी आपके पास वो एक्सपेरिमेंट है, that experiment must be binomial experiment. अब अलग एक नई बात आ गई कि सर बायनोमियल एक्सपेरिमेंट क्या है भाई? किस एक्सपेरिमेंट को हम बोल सकते हैं बायनोमियल एक्सपेरिमेंट? whether I'm taking an experiment as I'm rolling a die, तो क्या ये बायनोमियल एक्सपेरिमेंट है? If I'm tossing a coin, क्या ये बायनोमियल एक्सपेरिमेंट है? I'm picking a random card from the deck of 52, क्या ये बायनोमियल एक्सपेरिमेंट है? नहीं पता चलेगा ना. तो पहले ये पता होना चाहिए ना हम लोगों को कि बायनोमियल एक्सपेरिमेंट क्या है. सर वो तो डिफाइन कीजिए, फिर मैं बताता हूं आपको कि बायनोमियल एक्सपेरिमेंट है या नहीं. तो चलिए वहां पे लेके जाता हूं. व्हाट इज बायनोमियल एक्सपेरिमेंट? Be on the screen, all those who are in front of me. A binomial experiment is an experiment which satisfies the following attributes, following conditions. The experiment is repeated for fixed number of times, fixed number of trials. पता होना चाहिए कि वो एक्सपेरिमेंट कितनी बार रिपीट हो रहा है. 2 बार, 5 बार, 55 बार, 130 बार. It should be a fixed number, and we must be aware about that. Okay, we must be aware about that. कि वो कितनी बार होगा. Where each trial is independent from the other trial. Where each trial must be independent from the other trial. इसका मतलब क्या? If I'm tossing a coin 5 times, if I'm tossing a single coin 5 times, मैंने एक बार टॉस किया, रिजल्ट डिनोट करके, रिजल्ट कहीं पे लिख के, फिर मैं दूसरी बार टॉस कर रहा हूं, तो पहली बार जो हेड आया था, क्या उसकी कोई इफेक्ट रहेगी सेकेंड ट्रायल के ऊपर? नहीं रहेगी. इज इट? सो इन दैट केस बोथ द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट. ईच ट्रायल मस्ट बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर. हर एक ट्रायल, जो भी आप ट्रायल कर रहे हो, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. द सेकेंड, there are only two, there must be only 2 possible outcomes, हाँ या ना, success or failure, yes or no, like that. जो भी आउटकम है ना, आप उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर पाने चाहिए, या तो सक्सेस या तो फेलियर, या तो यस या तो नो. देन एंड देन, देखिए इसका नाम ही है बायनोमियल. बायनोमियल, इज इट? सो 2 ही आउटकम पॉसिबल होने चाहिए, या तो सक्सेस या तो फेलियर. ऐसा नहीं चलेगा कि अगर 3 आउटकम आ रहे, तब तो शायद आप थोड़े क्लियर होंगे. अब इफ आई एम टॉसिंग अ कॉइन, then surely it will be a binomial, this binomial experiment. We are not
Right now we are not discussing distribution. We are just talking about the experiment, binomial experiment. So tossing a coin, surely it is a binomial experiment, is it? But do you think that if I'm rolling a die, it will be a binomial experiment? No, because when we are rolling a die, we will have 6 different outcomes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. But if I'm going to define my outcomes like that, getting an even number or odd number, then it will be a binomial experiment, is it? So we need to take care about events also, is it? कि अगर even number मिल रहा है तो success है, odd number मिल रहा है तो failure है. So yes, rolling a die is also a binomial experiment. Rolling a die is also a binomial experiment. But based on that, कि हम हमारा random variable किस तरीके से define कर रहे हैं, is that? Let me take you further. The probability of success is same in each trial. Must be same in each trial. As I said, कि दो ही आउटकम होने चाहिए, या तो सक्सेस या तो फेलियर. तो हर बार जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो सेम होनी चाहिए. तभी तो उसको बोल रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से. तभी तो बोल रहे हैं हम कि each and every trial must be independent from each other. Is it? Okay. All those who are attending this online, if you are having any query, any doubt, you need to unmute yourself and let us know. Okay. आपको बोलना है. कितने बच्चे हैं? We are having 35 in front of us. Let me ask in between. अब तक की बात समझ में आ रही है? हर्ष, जय, निशी, all of you, those who are present, निमित. सर बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट वापस समझाओ. हाँ बेटा, अभी वो हमने खत्म नहीं किया. We are discussing on that. ही अभी वो बात खत्म नहीं हुई. अभी just चालू ही किया हमने वो. पर अभी तक समझ में आ रहा है ना? हाँ सर. Good. Sorry, I'm getting one of the question from the student. Once again, yes, dear. That depends के किस तरीके से हम उसको सेट कर रहे हैं. उसमें हम अपना रैंडम वेरिएबल किस तरीके से डिफाइन करेंगे. पहली बात तो ये हुई कि उसमें बाइनोमियल हो नहीं सकता. क्यों? क्योंकि हम हाइट की बात कर रहे हैं. हाइट की बात कर रहे हैं तो हम मेजरमेंट की बात कर रहे हैं. मेजरमेंट में मेजरिंग मतलब कि कंटिन्यूअस मतलब कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. डिस्क्रीट की बात ही खत्म हो गई. देख, यू मस्ट, तेरा दिमाग इस तरीके से काम करना चाहिए, तब जाके तुझे पता चलेगा. व्हेन वी आर डीलिंग विद दैट पर्टिकुलर मेजरमेंट रिलेटेड टू हाइट, देन द सूटेबल डिस्ट्रीब्यूशन विल बी नॉर्मल. वो नॉर्मल में जाएगा, नॉर्मल में घुसा सकेंगे उसको, बायनोमियल में नहीं जाएगा. पर थोड़ा रुक जा, एक बार पहले दो डिस्ट्रीब्यूशन देख ले, फिर ऑटोमेटिकली तेरा दिमाग उसके अंदर घुस जाएगा. यस, बोल ऋत्विक. हाँ, if we are giving one of the limit के greater than 30 डिग्री, तो हाँ वो hot, less than 30 डिग्री cold. अगर इस कैटेगरी में उसको डालते हैं तो हो सकता है उसको बाइनोमियल में घुसा सके. But when we are dealing with the measurement, हम हर बार किसके साथ बात करें? कंटिन्यूअस के साथ. Let's stick with the binomial experiment first. तो हर बार probability of success must be same, and the random variable x counts the number of successful trials. हम यहाँ पे अपना random variable x जो है ना, उसको successful trial कितने में सक्सेस मिल रही है उसके साथ एसोसिएट करेंगे. So अगर ये सारी बातें सेटिस्फाई हो रही है, then we can say that one of the experiment is binomial experiment. तो चलिए एक दो एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं कि क्या आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट. मैं एक दो एक्सपेरिमेंट आपके सामने दिखाता हूं और आपको डिसाइड करना है कि whether it will act as a binomial distribution or not. So for that you need to check this first three condition. last वाला तो वैसे ही छोड़ दो, उसकी वो we cannot say the last one is condition, पर पहली तीन है वो कंडीशन है. तो आपको ये चेक करना होगा. ठीक है, चलिए मैं लेके जाता हूं आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर. ओके, बिफोर दैट कुछ नोटेशन में आपको बता दूं कि क्या क्या नोटेशन हम यूज करेंगे. द सेम नोटेशन व्हिच यू गाइस वर यूजिंग इन योर 12th. Small n will be representing number of times a trial is repeated. हम कितनी बार करेंगे, that number will be, we will denote that with small n. अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट है वो 50 बार रिपीट करे 50 times, then n will be 50. Okay, p, small and italic p, that is probability of getting success. q, probability of getting failure. अगर सक्सेस और फेलियर दोनों को मैं p और q से डिनोट कर रहा हूं तो एक बात आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, वो कौन सी?
Let me pick my pen. What's wrong with this? What's wrong with this? Yes. In that case, one of the message will be clear in your mind that P plus Q will be always 1. Is it? Because P is the probability of success, Q is the probability of failure. हमारे पास दो ही आउटकम है, या तो सक्सेस या तो फेलियर. तो P plus Q will be always 1. अब इसके हिसाब से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. If you are having value of P, तो Q मिल सकता है. Q is equals to 1 minus P. If you are having value of Q, then आपको P मिल सकता है. P is equals to 1 minus Q. Is it? So एक सिंपल सी बात, that is P plus Q equals to 1. Then and number of times we are going to repeat trials. P probability of success, Q probability of failure, X. The random variables, वो कौन कौन सी अलग अलग वैल्यू लेगा उसको हम बताएंगे स्मॉल x है, उसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल x. So now I'm giving you two different examples, and you guys are supposed to identify whether the provided experiment which I am giving you on the screen right now is binomial or not. You need to decide that. I will provide you proper time. Decide whether the following experiment is binomial experiment. If it is, अगर वो binomial है, if it is, then specify the value of n, p, q, and list the possible values of x, random variable x, and if it is not binomial, then explain why. तो मुझे with reason बताइए कि क्यों ये binomial नहीं हो सकता, क्या कारण है, और तो क्या change करने से वो binomial हो जाएगा. चलिए, you are randomly we are going to select a card from pack of the 52 cards, and not. If the card is king, we will be noting that particular outcome. So what we are doing, we are selecting a card from 52 cards pack, and if it is a king, we will be taking not for that. Yes, it is a king. You then put the card back and repeat this process 8 times. आपको एक कार्ड उठाना है, देखना है किंग है या नहीं है. नहीं, जो भी आप नोट करेंगे, फिर वापस उस कार्ड को रख देंगे. दैट मींस कि उस पैक फिर से 52 का ही है. यू विल रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट फॉर 8 टाइम. नाउ माय क्वेश्चन इज दैट, क्या ये एक्सपेरिमेंट को हम बायनोमियल एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? How many of you are saying yes? Let me go through the chat box for those who are attending this online. सर, पर किंग नहीं होगा तो क्या होगा? किंग नहीं है तो भी तुझे लिखना है किंग है नहीं है. तुझे सिर्फ इतना ही देखना है किंग है नहीं है. If it is a king, then we're good. If it is not the king, तो भी कोई इशू नहीं है. यस सर, तो मिल रही. सॉरी, अगर किंग है तो बायनोमियल एक्सपेरिमेंट. अगर वो किंग नहीं, फिर से बोल, नहीं समझ में आया मुझे. नहीं, मतलब अगर वो किंग आया तो कार्ड वापस रख देगा, तो नेक्स्ट उसके इटरेशन में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं. हाँ, इंडिपेंडेंट होगा. तो हर बार किंग है नहीं है, हर बार हम कार्ड को वापस रखेंगे. ठीक है, वो किंग है या नहीं है, हर बार हम उस कार्ड को वापस ही रखेंगे. Now my question is that whether this can act as binomial experiment or not. All those who are in front of me they are saying yes, it will be a binomial distribution. अगर ये binomial distribution है तो क्या आप बता सकते हैं मुझे कि what will be the value of n? n की वैल्यू क्या है? हम कितनी बार ये एक्सपेरिमेंट रिपीट कर रहे हैं? 8 times. Yes, 8. Okay, can you give me the value of p? What is small p? As I just mentioned in the previous slide, small p represents the probability of success. क्या लगता है आपको? First of all, success. यहाँ पे सक्सेस मिलेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? इसको सक्सेस बोल रहे हैं, ये भी तो पता होना चाहिए ना आपको. Getting a king is a success. Getting a king is a success. चलिए ऐसे डिफाइन करते हैं. Getting a king is a success. X माने कि हमको किंग मिल रहा है, इसको सक्सेस बोल रहे. ठीक है, चलिए, तो p की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/52. इज इट? क्योंकि 4 किंग है, मैंने कोई शूट पे स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि इसी शूट का चाहिए. इज इट? 4/52 माने कि 1/13. दैट शुड बी द वैल्यू ऑफ p. वंस वी आर हैविंग p, तो q तो मिल ही जाएगा. 1 minus p will gives us a q. 1 minus 1/13, it will be 12/13. So value of p and q. Now the important part is that, can you give me the range for small x? What is small x? Random variable. Random variable, is it? Small x को हमने क्या बोल के रखा है?
सक्सेस को क्या बोल के रखा है कि हमको किंग मिल रहा है, वी आर गेटिंग अ किंग। तो क्या बता सकते हैं कि एक्स की रेंज क्या होगी? एक्स पहले तो डिस्क्रीट है, ये तो पता है सबको। चलिए एक्स की रेंज क्या हो सकती है, कितनी बार सक्सेस मिल सकती है? नाम क्या है तेरा, नाम क्या है? सोच, थोड़ा सोच, देख। इट्स ओके, ऐसा होता है पहली बार जब ये तू एक्चुअल में समझ आया तो। पर देख मेरे सामने एक्सपेरिमेंट क्या है, एक कार्ड उठाना है। अगर वो कार्ड किंग है तो सक्सेस, किंग नहीं है तो फेलियर। अब तू ये एक्सपेरिमेंट कितनी बार कर रहा है? देख कितनी बार कर रहा है ये एक्सपेरिमेंट, 8 बार। तो हो सकता है ना कि 8 बार किंग मिले, हो सकता है, इट इज पॉसिबल, हाँ या ना? तो ये भी सकता है कि एक भी बार ना मिले, ये भी हो सकता है एक बार मिले, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, 6, 7, 8 बार, 9 बार हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम 9 बार एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं रहे। सो माय एक्स विल हैव द रेंज फ्रॉम 0, 1, 2, 3 अप टू 8 ओनली। अब क्या आप बताओ, क्या यहां पे एक्स ये वैल्यू ले सकता है 1.5? इज इट पॉसिबल कि हमको 1.5 बार सक्सेस मिली भाई? 1.5 बार किंग मिला नहीं होगा ना? x can't take that any of that fractional value. x जो भी वैल्यू लेगा वो 0 से 8 के बीच में होगी। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, is it? So yes, this is a binomial experiment surely. क्यों है बताता हूं, देख लीजिए एक बार। Just go through this once, let me know. मैं ऑनलाइन वालों बच्चों से पूछ रहा हूं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ प्लीज ड्रॉप। अगर समझ में आ रहा है तो भी एक्नॉलेज कीजिए चैट बॉक्स में, नहीं समझ में आ रहा है तो भी बताइए जल्दी से। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। ऑल दोज हु आर अटेंडिंग दिस आर सपोज्ड टू रिप्लाई ऑन द चैट बॉक्स राइट नाउ। ऑल दोज हु आर अटेंडिंग दिस, देखिए यहां से कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि आप छोड़ सकते हो कि नहीं सर इट्स ओके, मुझे ये टॉपिक प्रिपेयर नहीं करना है, उसके बाद कोई भी कर लूंगा। नहीं, आप बीच में से कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ पाएंगे, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड। मैंने इतना ही कंटेंट रखा है जिसकी मुझे जरूरत है, तो बीच में से कोई भी आप ऐसे ही आप खुद से नहीं निकाल पाओगे कि नहीं सर बायनोमियल नहीं करना है, पॉइजन कर लूंगा, नॉर्मल नहीं करना है, एक्सपोनेंशियल करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं, सब करना है। वेरी गुड। 5 बच्चों ने कमेंट डाली अब तक चैट बॉक्स में, बाकी के लोग कौन कहां है? If you're not replying, if you're not acknowledging on the chat box, I will not able to give you attendance. Take care for that. You need to acknowledge on the chat box. Good. Let me take you further. Let me give you one more example. Once again, the similar kind of process will be there. You need to decide whether it is a binomial experiment or not. अगर नहीं है तो reason देना, अगर है तो n, p, q and x की values देनी, ठीक है? Second is this. You roll a die 10 times, roll a single die 10 times, and not the number, not the outcome, जो भी आ रहा है। क्या इसको बायनोमियल बोल सकते हैं? यही एक्सपेरिमेंट है, आगे कुछ मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है, सिर्फ इतना ही स्पेसिफाई कर रहा हूं कि एक डाई उठाओ भाई, 10 बार उसको रोल करो, जो भी आउटकम आ रहा है उसको आप कंसिडर करो। क्या ये बायनोमियल है? नहीं है, नो इट इज नॉट। क्यों? क्योंकि वी आर हैविंग 6 डिफरेंट आउटकम्स व्हेन वी आर रोलिंग अ डाई। वी विल बी हैविंग 6 डिफरेंट आउटकम व्हेन वी आर रोलिंग अ डाई। और मैं सक्सेस को किसके साथ कंसिडर करूं? किसी के साथ। अगर एक के साथ कर रहा हूं तो बाकी 6 बार फेलियर आ रही है, इज इट? और जैसे हमने बोला कि भाई we need to associate our success. अगर मैंने यहां पे बोल दिया कि you need to denote outcome if it is a even number, तो ये binomial हो सकता है। और you may associate that x with the odd number. अगर odd number मिले तो success, even मिले तो failure, तो हाँ ये binomial हो गया, पर मैंने ये specify नहीं किया हुआ, ठीक है? So are we good? Yes, Path, you are correct. No, it's not the binomial. Correct. Nishi, are we good with this? Abhishek, Kishan, ये बायनोमियल नहीं होगा, समझ में आ रहा है बेटा? Good. Let me take you further. Now, once we are clear with the binomial experiment, तो हम binomial distribution के पर
बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करने के लिए बिल्कुल रेडी। अब तक बात हो रही थी वो बायनोमियल एक्सपेरिमेंट की हो रही है, और किस तरीके के एक्सपेरिमेंट में हम डिस्ट्रीब्यूशन, ये बायनोमियल वाला डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो बायनोमियल एक्सपेरिमेंट है तो बिफोर अप्लाइंग बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वी नीड टू बी श्योर दैट आवर डेटा, आवर एक्सपेरिमेंट इज बायनोमियल। जब हम क्लियर है बायनोमियल एक्सपेरिमेंट के लिए, तो चलिए देखते हैं कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला क्या है, उसमें कैसे काम करेंगे। A discrete probability distribution that used for the data which can only takes one of two value, that means the pass or fail, yes or no, good or defective, ऐसी कई बात है, तब हम बायनोमियल यूज कर ही सकते हैं, क्योंकि इसमें से किसी एक को हम सक्सेस के साथ एसोसिएट करेंगे, दूसरे को फेलियर के साथ। It allows to compute a probability on the number of successes for the given number of trials. Success could mean anything. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन मैंने इसको रेड में लिखा हुआ है, देखिए सक्सेस कुड मीन एनीथिंग यू वांट टू कंसीडर एज अ पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम। हेड आ रहा है उसको सक्सेस बोल रहा है, मैं हेड आ रहा है उसको सक्सेस बोल रहा हूं व्हेन आई एम टॉसिंग अ कॉइन। आप बोल सकते हैं कि टेल आ रहा है वो सक्सेस है, इज इट? सो इट्स फाइन, इट्स टोटली फाइन। Now we are ready and loaded to discuss about the binomial probability distribution. चलिए क्या है उसकी फॉर्मूला। If in a binomial experiment the probability of getting exactly x number of successes in n trials is, the formula is this। देखिए ये वाली फॉर्मूला आपको पता है, ये आपने डील की हुई है, NCX p raised to x q raised to n minus x. This is the formula, this is the probability function for the binomial distribution। और नीचे जो लिखा हुआ है that is nothing but that is just a simplification, simplified version of NCX। we are इसको अगर सिंप्लीफाई करें NCX को, that is n factorial divided by n minus x factorial into x factorial, तो ये तो बस इसका सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफाइड वर्जन है, nothing else। we are never gonna use this, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि NCX हम सॉल्व कर सकते हैं कैलसी से डायरेक्टली, एंड कैलसी इज टोटली अलाउड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। ओके, सो p raised to x q raised to n minus x, where x means the range for which random variable, discrete random variable can take values from, and p means probability of success, q means probability of failure। ये सारी बात हमको पता है। n number of trials, x number of successes, p is a probability of success, q is probability of failure, and then both these are the parameters n and p are the parameters y। Binomial distribution is fully defined if we are having the value of n and p। अगर आपके पास n और p दोनों है, n की वैल्यू और p की वैल्यू, बात खत्म। q you can determine, you are able to determine from the value of p। n और p दोनों है, then we can determine, we can derive the entire distribution। So n and p are known as parameters, and n is a discrete। out of that ध्यान में रखिए, n is discrete where p is continuous parameter। सर डिस्क्रीट की बात हो रही है, ये कंटिन्यूअस कहां से आ गया? पर किसके लिए बोला? देखिए p है क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और हमको पता है प्रोबेबिलिटी ऑलवेज रेंज बिटवीन 0 to 1। वो p की वैल्यू 0.5 हो सकती है, 0.42 हो सकती है, 0.79 हो सकती है, इज इट? पर n की वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर ही होगी, 0 या तो फिर पॉजिटिव इंटीजर, इज इट? गुड। मीन की बात बाद में करेंगे, इट्स फाइन। पर हमको अभी याद रखना है कि मीन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज n into p। Why it is n into p? There is a proof on your screen। As we all know that मैंने आपको एक्सपेक्टेशन की फॉर्मूला बताई थी फॉर द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। एक्सपेक्टेशन हम कैसे फाइंड करते हैं? एक्सपेक्टेशन मानी कि मीन कैसे फाइंड करते हैं? याद कीजिए, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। Expected value of any of the distribution we can identify as summation of x into probability of that particular, is it? ये बात हुई थी, कब हुई थी? लास्ट सेशन में हुई थी, when we were discussing about one of the game। वो ड्रीम 11 वाली बात या तो फिर कोई और बात हो रही थी, तब हमने इसका डिस्कशन किया था, is it ना? So instead of p of x, probability function हमको रिप्लेस करना है। probability function अभी हमारे पास है, इसको रिप्लेस करके मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर करूं, then I'll be having n into p। So n into p is nothing but the mean for the probability binomial distribution। Binomial distribution का mean होगा n into p, where n is number of times they are repeating that trial and p is probability of success। Similarly, अगर median और variance की बात करेंगे, then variance of this distribution is n into p into q। ये याद रखना आपको,
and there is a fixed relation between variance and standard deviation. We all know that standard deviation is nothing but the positive square root of the variance. So standard deviation मानी कि square root of variance, and variance, as I said, that is n into p into q. So standard deviation will be n into p into q. Is it? So these are the important part of this distribution. बाइनोमियल के लिए जो भी मुझे बात करनी है उसमें जो भी हम एग्जांपल करेंगे उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी. So it will be good if you are going to note down this three. What is the mean of binomial distribution? That is n into p. What is the variance? That is n into p into q. And what is the standard deviation? That is positive square root of n into p into q. ठीक है. अगर नहीं लिखना है तो भी ठीक है. I had already shared this. Okay. मैंने वो चारों इस सेकेंड यूनिट में जो चार डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ने वाले हैं वो चारों की पीपीटी ई कंटेंट में भी अपलोड की हुई है और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजी हुई है. ठीक है. सो यू मे हैव रीडिंग मटेरियल, रेफरेंस मटेरियल विथ यू. इस बार पहले से ही करनी है. ठीक है, ताकि भूल ना जाऊं. मोड अभी नहीं डिस्कस करना है, जाने दो. वी आर गुड विद द मोड. यस, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल. चलिए एक एग्जांपल करने के बाद हम आज का सेशन खत्म करेंगे यहाँ पे. गुड. Just go through the information which we are having. नहीं, ये वाला नहीं करना. रुक जाओ. अगर एक ही करना है तो ये वाला नहीं करना. We will I'm in need of word problem. Yes. ये देखिए. 2 dice are thrown 5 times and I'm throwing 2 die at a time. 5 बार कर रहा हूँ. Find the probability of getting the sum as. sum मतलब की क्या? total मतलब की क्या? पहली डाई पे 5 आए, दूसरी डाई पे 2 आए तो 5 plus 2 7. That is my sum. यहाँ पे SOME sum नहीं लिखा. SUM sum, that means के addition, that means के total. Sum as 7. At least once, exactly 2 times, and between 1 to 5. तो पहले तो आपको डिसाइड करना है कि क्या ये वाला एक्सपेरिमेंट जो हम कर रहे हैं वो बाइनोमियल है या नहीं है. ये बाइनोमियल है या नहीं है. अगर ये बाइनोमियल है तभी तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होगा, वरना नहीं होगा. इट इज बाइनोमियल. क्यों? क्योंकि हम एसोसिएट सक्सेस किसके साथ एसोसिएट करेंगे ये बता वृंदा. यस, अगर टोटल 7 आ रहा है तो सक्सेस, टोटल 7 नहीं आ रहा तो फेलियर. टोटल 2 भी आया तो फेलियर, टोटल 12 भी आया तो फेलियर. इज इट? पर टोटल अगर 7 आया ना तो सक्सेस. इज इट? सो यस, दिस इज अ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट. फिर हमको ये भी पता है कितनी बार रिपीट कर रहे हैं. देख कितनी बार रिपीट कर रहे हैं भाई. निमित 5 टाइम्स. इज इट? तो n की वैल्यू 5 होगी. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस. अब सक्सेस को अगर हम बोल रहे हैं कि 7 टोटल 7 आए तो सक्सेस, तो बता सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. if I'm throwing 2 dice at a time तो आउटकम कितने होंगे. 36. 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6. is it? 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 up to 6 6. तो टोटल 36 आउटकम्स हो सकते हैं. उसमें से ऐसे आइडेंटिफाई करके जो टोटल 7 दे रहे हैं 6 ऐसे होंगे कि जो टोटल 7 देंगे. क्या क्या? 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1. is it? 7 0 भी तो हो सकता है. 7 0 आएगा ही नहीं. 7 0 आएगा ही नहीं क्योंकि हम डाई थ्रो कर रहे हैं. is it? सो 6 आउटकम ऐसे जो कि टोटल आपको 7 दे सकते हैं. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विल बी 6/36 मानी कि 1/6. अगर p की वैल्यू 1/6 तो q क्या होगा? 5/6. 1 minus 1/6 that will be 5/6. तो n की वैल्यू तुझे पता है, p की वैल्यू तुझे पता है. अब ये बता x. x is my random variable. is it? कितनी बार सक्सेस मिल सकती है ये बता. 0 to 5. क्यों भाई? 5 बार मैं रिपीट कर रहा हूं. हो सकता है 5 बार टोटल 7 आए, ये तो फिर एक भी बार ना आए. सो 0 माने कि एक भी बार सक्सेस नहीं मिल रही. 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार. सो x कैन हैव रेंज फ्रॉम 0 to 5. खत्म, बात खत्म. देख लो सॉल्यूशन भाई, मैं कुछ नहीं बोलूंगा. This is our probability function, binomial distribution function. is it? यहाँ तक क्लियर है. In a single throw of 2 die, the sum of 7 can occur 6 ways out of 36 times. वो 6 कौन कौन सी बार हो सकता है? 1 6 6 1, then after 2 5 5 2 3 4 4 3 like that. एंड p को अगर मैं सक्सेस बोल रहा हूँ तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 क्योंकि 5/6 ये हमने अभी डिस्कस किया. और जैसे मैंने बोला कि 5 बार रिपीट कर रहे हैं तो x की रेंज हो सकती है 0 से 5.
तो अगर npx सभी की वैल्यू है आपके पास npqx, तो आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हैं. दिस इज द वे you can write your distribution, as we know that the formula is ncx p raised to x q raised to n minus x. Then it will be 5cx 1 by c raised to x 5 by c raised to 5 minus x. मैंने सिर्फ n p और q की वैल्यू वहां पे लिखी हुई है, that's all. अभी तक ये सिर्फ मेरा प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, ठीक है. अब इस फंक्शन की मदद से मैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करूंगा. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वी नीड एटलीस्ट वंस, वी नीड सक्सेस एटलीस्ट वंस. एटलीस्ट वन कम से कम एक बार. कम से कम एक बार का मतलब क्या? 2 बार आए तो आई एम गुड, 3 बार भी गुड, 4 बार, 5 बार तक आता है, आई एम गुड. सो probability of getting sum at least once in 5 row of 2 die is, देखिए एक बार, probability of x is greater than equals to 1. तो दो अलग तरीके हैं. अगर ऐसा नहीं करना है तो दूसरा भी एक तरीका है. क्या? We are looking for probability of x is greater than equals to 1, क्योंकि एटलीस्ट एक लिखा है. उसका मतलब क्या? मुझे चाहिए probability of x equals to 1. एक बार सक्सेस मिले, 2 बार मिले तो भी आई एम गुड, प्लस 3 बार मिले तो भी आई एम गुड, प्लस 4 बार मिले तो भी आई एम गुड, प्लस 5 बार मिले तो भी आई एम गुड. इज इट? दिस इज वन ऑफ द वे. आप ऐसे भी कर सकते हो. इफ यू विश टू डील विद दिस फॉर्मूला, तो आपको वो ऊपर वाली ये वाली फॉर्मूला 5 बार अप्लाई करनी है. एक बार उसमें x की वैल्यू 1 लेनी है, 2 3 4 और 5 बार भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. डू वी हैव एनी अल्टरनेट? यस वी हैव. जैसे कि हमको पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो मैं क्या कर रहा हूं? p ऑफ x इक्वल्स टू 0 को 1 में से सबट्रैक्ट कर दूं, मुझे वही मिलेगा. इज इट? तो अगर मैं ये यूज कर रहा हूं तो मुझे ये फॉर्मूला 5 बार अप्लाई करनी है. अगर मैं ये यूज कर रहा हूं तो मुझे ये वाली फॉर्मूला, डिस्ट्रीब्यूशन वाली फॉर्मूला एक ही बार अप्लाई करनी है. आई एम जस्ट सपोज टू सबट्रैक्ट x इक्वल्स टू 0 फ्रॉम 1. सो ऊपर वाली फॉर्मूला में x इक्वल्स टू 0 लेके 1 में से सबट्रैक्ट कर दीजिए, एंड दिस विल बी योर प्रोबेबिलिटी. दिस विल बी योर प्रोबेबिलिटी. सिंपल. अब दूसरा जो था एग्जैक्टली 2 टाइम्स, मुझे 2 बार चाहिए सक्सेस. एग्जैक्टली 2 टाइम्स तो खत्म ना. x इक्वल्स टू 2 एक ही तो सॉल्व करना है. इज इट? And last, x is having range between 1 and 5, माने कि 2, 3, 4. ये 3 निकालो, ऐड करो, बात करो. So let me know, are we good with this? Are we good with this? All those who are attending online. आ रही है बात समझ में? अगर ये बात समझ में आ रही है तो I will advise you before coming for the next session, you will be going for the entire presentation which I had shared with you based on focused on the binomial distribution. वो सारी पीपीटी जो मैंने शेयर की है ना, वो एक बार देख के आना है, ठीक है? तो खत्म हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट में. बहुत सिंपल है. यही तो है बायनोमियल, और कुछ नहीं. ठीक है? Let me stop the recording now and let me end the session because I'm having one other session in the 4th semester, so